Hello student, today I gave you a test of MCQ and one numerical, and I put the answer of MCQ in a group, but I just want to give an explanation on the numerical portion. The solution will be given in your group and of MCQ as well as numerical, but how to solve and how what the concept behind that portion I just want to discuss with you. It helps you to solve other problem too. So I just give the explanation on this numerical. The question, you all have a question. So I don't write here a question, just write down a given data here and solve a numerical in a hint basis, that because screen is not appropriate to solve full numerical. I just want to give you some hint so that you can easily solve your numerical. So the given data is, I just want to draw firstly a diagram. The diagram of the given question is PV diagram हमें दी है, और जो डाटा हमें दिया था वो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. This cycle, that question, the question पढ़ोगे, you realize that this question is from auto cycle, and this is the graph of auto cycle. This is the graph of auto cycle to constant volume process 1 2 3 4, process 2 to 3 and 1 to 4 to 1 are constant volume process, heat addition and heat rejection respectively, according to auto cycle. And 1 to 2 and 3 to 4 are compression, isothermal compression as well as isothermal expansion process, and these are isentropic process. And this is all about auto cycle graph, and the given data we have is some temperature. TS diagram, this is TS diagram, this is TS diagram. 1 2 3 4, process 1 to 2 is isentropic process, that's why it is straight line, as is isentropic entropy, and the process is isentropic process. A reversible adiabatic process is also called isentropic process. And the 3 to 4 process is a straight line, 3 is straight line process, it is also isentropic process. 2 to 3 are a constant volume process, and 4 to 1 is a constant volume process. And 2 to 3 is a constant volume heat addition process, and 4 to 1 is a heat rejection process. These are the diagrams, and the given data we have is according to the question is P1 दिया है हमें. P1, this is P1, ये कितना है 1 into 10 raised power 5. the pressure दिया है T1, हमें कितना दिया है, यहाँ से आप मार्क कर सकते हैं. T1 ये है, हमें दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस दिया है. तो हम क्या करेंगे, 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन, हम केल्विन में लिखेंगे इसे. एंड सेकंड टेम्परेचर T2 दिया है हमें 600 Kelvin is the T, and T3 maximum temperature when heat is added and the final heat is added. So the temperature is given is 1800 degrees Celsius. These are the data we have according to the numerical problem. T1 दिया है 300 degrees 300 Kelvin, T2 is 600 Kelvin, and 1800 Kelvin is T3, and P1 temperature दिया है, sorry P1 pressure दिया है 1 into 10⁵. So अभी मैं इसे सॉल्व करूँगा. डायग्राम मैं साफ कर देता हूँ. डायग्राम आपके पास सोल्यूशन होगा, उसे सामने रखिए. डायग्राम मैंने आपको समझा दिया. अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन निकालने की ट्राई करूँगा, आपको एक आइडिया दूंगा, पूरा सॉल्व तो नहीं होगा इस पर. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आर क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो. ये क्या होता है, V1/V2, ये आपको बताया है. और ये किसके बराबर होता है, T2/T1 रेज़्ड पावर 1 - R - 1.
ठीक है। और ये था। और हमें पता है एडियाबेटिक में जो हम लोग प्रोसेस में, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में हम फॉर्मूला जो यूज़ कर सकते हैं, T1 है V1 बाई V2 किसके बराबर होता है, P2 बाई P1। प्रोसेस 1 टू 2 की बात कर रहा हूँ, प्रोसेस 1 से 2 की बात कर रहा हूँ मैं। और ये किसके बराबर होता है, 1 बाई R इज इक्वल टू T2 बाई T1, इसके बराबर होता है 1 माइनस R माइनस 1, दैट इज गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, इसको यूज़ करना है। इसमें आपको गिवन क्या है, आपको T2 दिया है और T1 दिया है, और आपको निकालना है V1 बाई V2। और R गिवन है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू 1.4 है, बिकॉज फॉर एयर इट्स वैल्यू इज 1.4। तो आपका निकला क्या, R इज इक्वल टू, R क्या है, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो है, तो कंप्रेशन रेशियो है R। ठीक है, तो यहाँ से आपको R की वैल्यू निकल जाएगी इससे, क्योंकि ये आपको सब नोन है, तो इससे इससे आपकी R की वैल्यू निकल गई। तो जब R की वैल्यू कितनी आई इसमें, R की वैल्यू देखेंगे हम लोग कितनी आई इसमें। और देखिए कंप्रेशन रेशियो क्या होता है ये भी मैं आपको बता ही दूँ। ये ऐसे, ये गया वॉल्यूम प्रोसेस, ये प्रोसेस बनाया, ये प्रोसेस था 1 2, ये था। तो ये वॉल्यूम क्या है, ये पीवी ग्राफ है, ये वॉल्यूम क्या था, V1 वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमारा V2 वॉल्यूम, V2 वॉल्यूम। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, द R इज इक्वल टू V1 वॉल्यूम बाय V2 वॉल्यूम, V1 वॉल्यूम बाय V2 वॉल्यूम। V1 वॉल्यूम क्या है, दिस इज द V1 वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक, और दिस इज द V2 वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है इनका कंप्रेशन रेशियो। तो जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका एक कंप्रेशन रेशियो होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आर इज अ कंप्रेशन रेशियो। तो आपके पास सोल्यूशन होगा, उसे देखते जाइए आप। तो निकला क्या यहाँ से, आर की वैल्यू निकल गई। आर की वैल्यू कैसे निकली, T2 की वॉल्यूम दी थी 600 बाय 300 रेस्ट पावर 1 माइनस 1 बाय 4 माइनस 1, ये आपका कितना आया 5.657, ये निकली आर की वैल्यू। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है ऑटो साइकिल की, दिस। आर की वैल्यू दी है 1.4, ये आर हमारा निकल गया 5.657। तो एफिशिएंसी कितनी निकली, इससे निकली एफिशिएंसी 0.5, दैट इज एफिशिएंसी आई 0.5, दैट इज 50%, दैट इज द 50% एफिशिएंसी निकली ऑटो साइकिल की। पर हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हीट सप्लाई कितनी हुई है, हीट रिजेक्शन कितना है। तो उसके लिए आपको ये 50% वाला आपको अभी पता चल गया। एफिशिएंसी भी शायद दी थी, कैलकुलेट द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, यस, एक आंसर निकल गया हमारा, एफिशिएंसी निकल गई 50%। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे, बाकी जो हमें निकालना है, बाकी क्या निकालना है हमें उसे देखते हैं पहले। देखिए हमें निकालना है, पहले ग्राफ पे आते हैं, दोबारा से ग्राफ पे हमें निकालना है, ये था, ये ग्राफ था 1 2 3 4। देखिए हमें निकालना है हीट एडेड एंड हीट रिजेक्टेड। हीट एडेड एट T2 बाई T3 में हीट ऐड होती है, दिस इज हीट एडेड, मतलब हीट इन ऑटो साइकिल हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, that is 2-3 process, and heat is rejected in heat rejection process at constant volume, this is constant volume process in 4-1 process। तो हमें टेम्परेचर किसका पता होना चाहिए, हमें एक T3 टेम्परेचर नोन होना चाहिए, एक T2 टेम्परेचर का पता होना चाहिए, T4 टेम्परेचर का पता होना चाहिए, और T1 टेम्परेचर का पता होना चाहिए। T1 टेम्परेचर हमें गिवन है, T2 भी गिवन है, और T4 भी गिवन है हमें। और हमें गिवन है, सॉरी, हमें T3 गिवन है, हमें T3 गिवन है, T4 नहीं गिवन है, ये हमें निकालना है। जैसे ही ये निकल जाएगा तो हमारे बाकी के जो हमें फाइंड आउट करना है, द रिमेनिंग थिंग जो हमें फाइंड करनी है वो पता चल जाएगा। तो प्रोसेस अब क्या है, प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4 की बात करूँ अगर मैं, प्रोसेस 3T/T4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी वी
सॉरी V4 निकालना है, ऊपर लिखा है इसे, ये T3 नीचे लिखा, इस V3 बाय V4 रेस्ट पावर आर गामा -1, ठीक है। तो हमें ये क्या है, ये फॉर्मूला है, इससे आपको मैं एक बार डायग्राम से बता दूं। ये देखिए, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रहते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। देखिए V3 इज इक्वल टू वी वॉल्यूम ऑफ V3 इज सेम एज V2 एंड वॉल्यूम ऑफ 4 इज इक्वल टू सेम एज वॉल्यूम ऑफ 1, 4 इज इक्वल टू 1। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं V3 को V2 के साथ, और V4 को रिप्लेस कर सकते हैं V1 के साथ। तो हमें क्या मिला, हमें मिला इससे क्या, हमें ये इससे पता चला कि जो T4 बाय T3 है, इसे हम लिख सकते हैं V2 बाय V1 लिख सकते हैं इसे। और V2 बाय V1 क्या था हमारा, कंप्रेशन रेशो। तो आप कंप्रेशन रेशो की इस पे वैल्यू डाल दोगे तो आराम से आप निकाल सकते हो। तो आपके पास कंप्रेशन रेशो की वैल्यू थी, कंप्रेशन रेशो की आपके पास कंप्रेशन रेशो की वैल्यू थी, कंप्रेशन रेशो की वैल्यू T4 बाय T1, कंप्रेशन रेशो की वैल्यू हुई आपके पास, हाँ जी, कंप्रेशन रेशो की वैल्यू 1 बाय गामा आएगा इसका। और ये उसके बाद आपकी क्या वैल्यू है, ये 1800 गिवन था, 1/5.657 एंड 1.4 -1 ये गिवन है। और इससे आपका T4 कितना निकला, 900 केल्विन, यही हमें निकालना था। अब क्या हुआ, हमें हमें सब चीज़ निकल गए, सारे टेम्परेचर निकल गए। अब आपको फार्मूला लगाना है और वैल्यूज़ पुट करनी है इनकी, और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, Q2 बाई Q3 प्रोसेस पे जो हीट एडिशन प्रोसेस है, फॉर्मूला होता है MCV इंटू T3 माइनस T1। M इज पर केजी ले रहे हैं तो M को निगलेक्ट पर केजी लिखेंगे, 1 ले ली इसकी वैल्यू, दैट इज 1 इंटू CV की वैल्यू दी है 0.7, तो ये आप देख लेना क्वेश्चन से, इंटू 1800 अभी T4 की सॉरी इसकी वैल्यू निकाली थी T3 की वैल्यू गिवन है हमें 1800 माइनस देन T1 इज 300। इससे आपको एक जो निकलेगा वो आंसर होगा, सेकंड आंसर होगा हमारा, जिसका आंसर है 900 किलो जूल पर केजी। ये हमारा हीट एडेड है, ये हम हीट ऐड करेंगे, ठीक है। और जो हीट रिजेक्ट कितना हुआ, मतलब हीट सिस्टम में कितना आया और कितना रिजेक्ट हुआ, और क्या एफिशिएंसी थी, एफिशिएंसी 50% थी, तो हीट रिजेक्टेड कितना होगा 50%, मतलब 450। अब इसका आंसर कैसे आएगा, Q4 - 1 हीट रिजेक्टेड प्रोसेस है, रिजेक्शन प्रोसेस है, दिस इज हीट रिजेक्शन, CV इज इक्वल टू इनटू रिजेक्शन कहाँ से हो रहा था, T4 माइनस T1, आपको मैंने समझाया T4 माइनस T1। तो इसमें आप वैल्यूज वो सब डालोगे, और T900 हमारा आया था जो हमने T4 निकाला, और -300 किया, यहाँ से आया 450 किलो जूल पर केजी। तो ये जो हमें था निकालना, ये वैल्यू हमें निकालनी थी। और एक बार लास्ट में ग्राफ पे आते हैं दोबारा, ये हमारे पास ग्राफ था, मैं T1 ये प्रोसेस की बात कर रहा था, 1 2 3 4, एफिशिएंसी आपने निकाल ली, ठीक है। ये था PV डायग्राम। Q कौन सा निकाल रहे थे हम लोग, 2 से 3। 2 से 3 क्या होता है प्रोसेस, हीट एडिंग प्रोसेस। उसमें क्या लिख रहा था, MCV T3 माइनस T2 ही लिख रहा था मैं, T3 माइनस T2 लिख रहा था, उसकी वैल्यू डाली मैंने। T1 हमें गिवन था, T3 हमें गिवन था, तो आपने इसकी वैल्यू निकाली। और Q4 - 1 क्या था, हीट रिजेक्शन प्रोसेस, यही तो हम बता रहे थे। तो क्या था, CV माइनस इसमें क्या आएगा, T4 माइनस T1 आया। तो हमने सब टेम्परेचर्स निकाले हैं, और ये टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन है PVT डायग्राम का, वो आपको दिया है, उसमें आपको सोल्यूशन तो उसके हिसाब से होता है। और ये आपका न्यूमेरिकल था, आई होप आपको समझ आया होगा।
और थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू। ओके।